Assalamualaikum pre-9th. This is your second lecture. We are going to start exercise 1.1. Our first chapter is matrices and determinants. Okay. Hopefully you get it the previous lecture number first. Find the order of the following matrices. We have to find the order. Okay. So student, if you remember that in previous lecture we have understood the four basic definitions. Okay. So let's review the definition next. First, the definition of matrices. What is the matrix? Okay, matrix. तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने सीखी थी कि हमने किसी भी रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, okay, like that, and then enclosed by the square bracket is said to be a matrix form. Okay, now again the rows and columns of a matrix. The concept rows mean the horizontal entries of the given matrix are called rows, and then columns दी वर्टिकल एंट्रीज, जो वर्टिकल एंट्रीज होंगी किसी भी मैट्रिक्स में वो हमारे पास क्या होती हैं, कॉलम. ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट इज द ऑर्डर? वी हैव अंडरस्टूड द ऑर्डर. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड्स इट्स ऑर्डर. मीन किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स जोन से थे वो हमारे पास उसके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, रोज एंड कॉलम्स. ओके, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then m is said to be a matrix said to be a order of m by n. मीन यहाँ पे किसी भी नंबर की कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स. तो उसको कैसे लिखेंगे, m की जगह पे रो लिखेंगे, रोज की तादाद को लिखेंगे. मीन अगर 2 रोज है तो m की जगह पे 2 आएगा, और कॉलम 3 है तो n की जगह पे 3 लिखेंगे. मीन कॉलम्स को हमेशा n की जगह पे लिखेंगे. मीन दिस इज अ फॉर्मूला फॉर राइटिंग द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, I have just explained shortly because I have given a briefly lecture on previous lecture number first. Okay, you can visit previous lecture also. Okay, for example, m is a order of 2 by 3. मीन इसमें 2 rows हैं, columns कितने हैं, 1 2 3 columns है. तो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, 2 by 3. मीन रोज को पहले लिखा जाता है, कॉलम्स को बाद में, और सेंटर में बाय. 2 by 3 since has 2 rows and 3 columns. Okay, equal matrix. Let A and B two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if. यहाँ पे 2 conditions भी हमने सीखी थी. The order of A and the order of B. इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे स्टूडेंट्स, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो वो इक्वल बोले जाएंगे. ठीक है, देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. मीन कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगे. लाइक डैट, अगर ये एग्जांपल, अगर A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मीन ये वाला 1 इस 1 के इक्वल है, ये 3 इस 2 + 1 के इक्वल होगा, ये -4 इस -4 के इक्वल होगा, ये 2 इसके 4 - 2. सो स्टूडेंट रिमेंबर डैट यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका 2 by 2 है. इसमें 2 रोज हैं यहाँ पे और 2 ही कॉलम्स है, कॉलम 2 में 3 कॉलम्स नहीं है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान साइंस प्लस क्या, मीन ये ऐड होकर फिर हमारे पास 3 ही बनेगा. मीन 2 + 1 3 बन जाएगा, 4 - 2 2 बन जाएगा. ठीक है, तो मीन ये अगर प्लस और माइनस के साइन है तो इनको एक ही कंसिडर किया जाएगा, एक ही कॉलम कंसिडर किया जाएगा. ओके, so let's start the exercise. So student, first exercise is very easy and simple exercise. Find the order of the following matrix. Find the order of the following matrix. Okay, now how to find the order of the following matrix? Okay, हम लिख लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं. लाइक दैट, फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इसमें हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स, 1 row 2 row, मीन R1 R2, and how many columns, 1 and 2. So what is the order of that matrix? 2 by 2. What is the order of that matrix? How many rows in this given matrix? 1 row, only 1 row. And how many columns? 1 and 2. 1 and 2. So 1 by 2 is the order of that matrix. Okay, so very simple concept. Now again you have can find the order of all the given matrix. Like that, अगर ये G matrix है तो इसका how many rows in this given matrix? 1 row, 2 and 3. And how many columns? 1 2 3. Columns vertical entries and rows are horizontal entries. We have understood very well in previous lecture and previous page in this exercise. Okay, so
ऑर्डर ऑफ जी इज, ऑर्डर ऑफ जी मीन इसका नेम जी है तो ऑर्डर ऑफ जी इज 3/3. नाउ which of the following matrices are equal? So student, you have to find the order of all the matrices and then you can say that these matrices are equal. Like that हम करते हैं क्वेश्चन इसके. So student, हमारे पास अगर ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये A है. What is the order of that matrix? One row and one column, mean order is, order of A is 1/1. एंड अब 1/1 वाले कौन कौन से हमारे पास मैट्रिक्स हो सकते हैं? अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट 5 - 2, ये इसमें हाउ मेनी रोज? 1 रो. हाउ मेनी कॉलम्स? 1 and 2. नो, देर इज नो 2 columns, only 1 column, because I have said that if the signs plus minus signs present between these two any two numbers, so you can count only once time. ओके, इसको एक ही कॉलम काउंट करेंगे. जैसे C है 5 - 2, तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आना? 3. 3 हैज ऑल्सो 1/1 order. Okay, so we can say that A and C are equal matrices. Okay, now again अगर यहाँ पे J है, J how many rows? 1 and 2. How many columns? Only 2 columns, because 2 becomes 2. यहाँ पे J को लिख लेते हैं 2 + 2, 2 + 4, 2 - 2, 2 + 0. Okay, so how many? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में इसका ऑर्डर फाइंड. 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2. So what is the order? 2 rows R1 R2. What is the what are the columns? C1 C2, mean 2 rows and 2 columns, so writing 2/2 is order. Okay, so 2/2 वाले और कौन कौन से हैं? मीन E भी 2/2 वाला है, H भी 2/2 वाला है. मीन J, E, H are equal matrices because their order are equal. Okay, so student, hopefully you get it very well. Now question number 3 is find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. Okay, so students, let's start. So student, question number 3 is find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix. Okay, so student, by the definition of equal matrix, आपने definition read की थी equal matrix के. if you can say that two matrices are equal, then the corresponding entries are also equal. mean अगर हम कहते हैं कि two matrix एक दूसरे के equal हैं, if we say that two matrices are equal, then we can also say that the corresponding entries of these two matrices also equal. corresponding entries का मीन अगर इसके इस लेफ्ट अपर कॉर्नर पे लेफ्ट अपर कॉर्नर वाली वैल्यू इसके लेफ्ट अपर कॉर्नर के इक्वल होगी, इसके राइट अपर कॉर्नर वाली वैल्यू इसके राइट अपर कॉर्नर वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी. ठीक है, और इसकी लोअर लेफ्ट कॉर्नर वाली वैल्यू इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर वाली वैल्यू के इक्वल होगी, और इसकी राइट लोअर कॉर्नर वाली वैल्यू इसकी राइट लोअर कॉर्नर के इक्वल होगी. ओके, सो हमने इनको इक्वल लेकर हमने we can take the entries are equal and then we finding the values of A, B, C and D. Okay, so let's see. We can write A plus C is equal to 0 by the definition of equality. Put a line here. A plus 2B is equal to -7. Put a line. C minus 1 is equal to 3. Put a line. 4D minus 6 इज इक्वल टू 2D. हमने किया क्या है स्टूडेंट्स? हमने सिर्फ बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं कि उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होंगे. मीन इसके लेफ्ट कॉर्नर जो अपर कॉर्नर उसकी वैल्यू इस 0 की इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी. कंपैरिजन करें, ये वाली इसके इक्वल होगी. मीन
अगर ये मैट्रिक्स इक्वल ऑफ 2 by 2 के मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और इनका ऑर्डर भी सेम है। मीन प्लस माइनस का साइन का मीन ये नहीं है कि ये 2 डिफरेंट कॉलम्स हैं, ये एक ही कॉलम है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो मीन ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल और ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल, ठीक है। सो नाउ फाइंडिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए एंड सी इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे हम वैल्यूज ए की निकालेंगे तो सी की कैसे निकाल सकते हैं, नहीं हमारे पास लिख सकते हैं, यहाँ पे ए और बी इन्वॉल्व है। इफ़ यू सी हेयर c -1 and 3, you can find the value of c very easily because यहाँ पे कोई और इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ c एट फर्स्ट, ओके। सो c सेम एज इट इज, you can take this -1 to the other side of equality becomes +1 means 3 ये वाला same as it is and we have take this -1 to the other side of equality and on going other side of equality this -1 becomes +1। इसको लेके इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये -1 +1 के इक्वल आ जाएगा, आप इसको अच्छी से जानते हैं, ओके। सो c is equal to 3 + 1 becomes 4, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 4। नाउ फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ a बाय पुटिंग दी c इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड है तो हम c की जगह पे वी हैव पुट एट द प्लेस ऑफ c 4 एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, सिंपल, ओके। सो नाउ फाइंड a, इस c की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, देन इक्वल टू 0, सिंपल। हमने जस्ट इस c की जगह पे इस 4 को रिप्लेस किया है, मीन c इक्वल है 4 के, वी कैन राइट 4 एट द प्लेस ऑफ c, ओके। नाउ वी हैव टेक दिस 4 ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वालिटी बिकम्स -4। You know very well, on going the other side of equality, the signs of numbers change. Mean if a number has plus sign becomes negative on going other side of equality, and if a sign has minus and becomes positive on going other side of the equality. So A's value and C's value we have find it. We have find. Now going to the value of B. So we have put -4 here at the place of 4. प्लेस ऑफ ए, ओके, सिंपल। ए की निकाली, उसमें सेकंड की पुट कर लिया, अब ए की आई इसमें पुट करके बी की फाइंड कर लेते हैं। -4 + 2b एंड -7, ओके, -7। नाउ 2b इसको इस साइड पे रहेगा, ये वाला -7 एंड यू हैव टेक दिस -4 ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वालिटी बिकम्स +4 -4 उस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, +4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास +4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का था, इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। -4 + 4 -7 + 4 becomes -3 बिकॉज वी हैव राइट दी साइन ऑफ हाइएस्ट नंबर, ओके। हाइएस्ट नंबर के साथ जो साइन होगा उसको ही लिखते हैं, मीन यहाँ पे हाइएस्ट नंबर 7 है तो इसका माइनस आएगा, लेकिन 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 and 2b। वैल्यू ऑफ b वी हैव डिवाइड ऑन बोथ साइड विद 2 बिकॉज हमने सिंपल b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3/2। वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ c। नाउ गोइंग टू द वैल्यू ऑफ d। इफ़ यू सी दैट स्टूडेंट हेयर द टू टर्म्स ऑफ d's इंक्लूड d, यहाँ पे ये भी 4d और यहाँ पे ये 2d है, तो मीन we have take the d's value on one side of equality and simple values on other side of equality। तो हम d वाली वैल्यूज़ को इक्वालिटी की एक तरफ लिख लेंगे और सिंपल वैल्यूज़ को इक्वालिटी के दूसरी तरफ। मीन अगर 4d है तो ये वाला 2d इस तरफ ले आएंगे, तो न प्लस का है जिसके साथ कोई भी साइन नहीं है, मीन वो प्लस का है, तो मीन इसको जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो 2d, और इस 6 को यहाँ पे इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले गए तो +6 because here the number is negative and on going other side of equality becomes positive, okay। Now 4d minus 2d becomes 2d। 4d d हमारे पास एक वेरिएबल है, 4d में से 2d निकाल देंगे तो मीन 2d आएगा प्लस का, क्योंकि बड़े
वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस का साइन, आई मीन ग्रेटर वैल्यू हैज पॉजिटिव साइन मीन प्लस का ही आएगा 2d। 4 में से 2 माइनस कर दिया, जस्ट 2 एंड d सेम एज इट इज, यू कैन सी ऑल्सो एज ओके 2d एंड 6। नाउ यहाँ पे डिवाइड विथ 2 ऑन बोथ साइड, 2 cancel out, d is equal to 2 1s are 2, 2 3s are 6, so d's value is 3. Okay, so student, this is the most important question of that exercise. Okay, now writing the value of a is -4, value of b is -3/2, value of c is 4 and value of d is 3. So this is our final answer. Find the values of a, b and c which satisfy the matrix. ओके, तो हमने सबकी वैल्यूज फाइंड कर ली इक्वल मैट्रिक्स की क्वालिटी, इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके. ओके, होपफुली यू गेट इट स्टूडेंट, एक्सरसाइज वेरी वेल. ओके, सो देयर इज सेकंड लेक्चर, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर. ओके, सो स्टूडेंट, इफ यू मिस्ड फर्स्ट वन, then go on channel and see again that lecture. Okay, so practice this exercise 1.1 and the previous concept very well. Okay, because these are basic concept, you know, so ये अच्छे से करें. ठीक है, थैंक यू.